Capital TV Washington. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैपिटल टीवी वाशिंगटन से मैं हूं नौशीन और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इट्स वेरी हार्ड टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि इसके अंदर हम लोग सब इन्वॉल्व हैं। मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि हमारी भी अभी फैमिली में शादी आई थी और हमने उसी तरीके से सेलिब्रेशन की जिस तरीके से सब करते हैं। लेकिन जब मैंने सरवत खान का पोस्ट देखा, इट वॉज लाइक ओपन माई आईज। हम लोग जो है एक दूसरे को देखा देखी सब काम कर रहे होते हैं। दोज आर such a good reminders for us. That's the reason I'm today I invited Sarwat Khan. Sarwat Khan को welcome करते हैं. And the topic that I was telling you that we have today is like marriage. Marriage is one of the most beautiful experience of human life. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is nothing like marriage for the two who love one another. Subhanallah. Marriage is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और इसी के हवाले से सेलिब्रेशन क्या कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है या क्या सही है, such a reminder that we bring today in our program. Let's welcome Sarwat Khan one more time in my program. Sarwat Khan is an American Islamic artist. She studied fine arts at College of DuPage, and last time when I had Sarwat, it was a beautiful reminders and such a beautiful conversation I had with her. Welcome Sarwat Khan. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. It's always pleasure to be here. You are a lovely person to talk with, and I feel very open to talk to you about so many topics that we feel like it's not easy to talk about the matters we discussed recently over our phone conversation too. Yes, and the topic that you brought definitely is a controversial topic, and but we can start with Bismillah. We have to, like I said, I'm in there too. I have to fix a lot of stuff and stop myself as well. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि डेफिनेटली जो है हम लोग 100% बिल्कुल सही हो जाए. एटलीस्ट वी शुड ट्राई. अल्लाह ताला जो हम लोग काविशें करते हैं, जो भी हमारी काविशें होते हैं वो भी देख रहे हो, वो भी कबूल करते हैं. अच्छा, सही बात है. ये है कि सेलिब्रेटिंग वेडिंग with the blessing and fulfillment of sunnah. That's what we are looking for. Definitely, yes. Yes. Right? That's what we are Yes. looking. And our, as you stated in your post, our weddings have become such fitna. Isn't it supposed to be a blessing, a fulfillment of word and sunnah? So इस little this statement it grabbed my attention कि सरवत क्या कहने वाली है. तो इसलिए सरवत से पूछते हैं कि सरवत आपके जहन में क्या बात थी, इस तरफ जो है आपने तवज्जो दी, इस जो ग्रोइंग टॉपिक है या ग्रोइंग जो हमारी जो है वो एक परेशानी कह सकते हैं, प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी महंगी एक्सपेंसिव वेडिंग्स होती जा रही हैं that it feels like we can't, it's not possible कि अगर आपके पास 150,000 अगर हम यहाँ पे रहते हुए आपको वेडिंग प्लानर अगर आप उनको हायर करते हैं, फोटोग्राफी देख लें, डेकोरेशंस देख लें और फूड देख लें, एवरीथिंग, अगर यू वांट टू बी लाइक परफेक्ट, एवरीवन वांट्स टू बी हैव अ परफेक्ट वेडिंग. तो इस हवाले से जो है सरवत से बात करते हैं. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone, whoever is watching. First, I'm going to start with Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I would also want to start with please, everyone who's going to be watching this, do not feel like I am pointing at someone. And I would it's a very controversial topic. I would not like to hurt anybody's feeling in this regards, because recently some of the family members got married, and वो शादियां भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसी आजकल हो रही हैं. So I'm not pointing at anyone. Please do not feel offended, and I apologize in advance अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया. But that's not my point here. So inshallah, I'm going to start. So Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us that Allah subhanahu wa ta'ala
bless those marriages which are can you stop? आप स्टॉप करें 1 मिनट के लिए. Yeah, sure. हो गया? I'm gonna crop it off. अभी हम लोग बंद नहीं कर सकते इसको. मैं इसको कट कर दूंगी later on. But चलिए it's सही है. ओके, सो सॉरी. एक्चुअली हुआ ये कि मैंने हस्बैंड को बोला था जल्दी शावर ले लिएगा क्योंकि उसकी आवाज आएगी. तो आपको मेरी आवाज सही आ रही है और that is so clear. हाँ, no problem. बिल्कुल ठीक है. नो प्रॉब्लम. चलिए फिर हाँ, सही है इंशाल्लाह. इसको कट कर देगा. ठीक है. सो सॉरी अबाउट दैट. no problem. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that Allah subhanahu wa ta'ala said, those marriages which has least expenses are the most blessed. तो हम इस हदीस से क्या बात ले सकते हैं? हम ये बात ले सकते हैं कि अगर इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जो जिस मैरिज में सबसे कम खर्चा हो, अल्लाह ताला उस मैरिज को ब्लेस करेंगे. लेकिन आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ दिस हदीस. हमारा मकसद क्या होता है शादी का? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ ब्लेस्ड वेडिंग. अगर आप देखें तो आजकल डिवोर्स रेशियोज कितनी ज्यादा हैं क्योंकि हमारा जो फोकस हो गया है ना वो शादी पे ज्यादा हो गया है, वेडिंग पे ज्यादा हो गया है देन अ मैरिज. We tend to not teach our kids कि हमको किस तरह शादी को लेकर चलना है, बाद में किस तरह की बातें होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं जो डिस्कस कर सकते हैं, शुरू में बच्चों को समझा सकते हैं और उनको रेडी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग hardships or blessings and everything. जो कुछ भी वो देखेंगे, of course शादी is blissful, right? लेकिन आपकी जिंदगी में वो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सब देखते हैं, जाहिर सी बात है, राइट? तो हमको बच्चों को उसके लिए तैयार करना है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी फोकस ऑन आवर वेडिंग सो मच. इफ यू सी कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है कि पैसा आप एक्चुअली जिनके पास नहीं भी है ना वो लोन लेके कर रहे हैं. Absolutely. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे तो हम सिर्फ अल्लाह ताला की रेत ले रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हान ताला को एंग्री कर रहे हैं. हम लोगों की जो शादियां स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं कि कुरान खानी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? हम नात ख्वानी से स्टार्ट करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, एंड थोड़ी देर के बाद जो है हम लोग जो है ढोलक निकाल लेते हैं और गाने बजाना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं. तो इस मैंने कुछ दिनों पहले सुना था जुनैद जमशेद के एक लेक्चर में, उसने कहा कि हम लोग ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं इसमें रहमान भी राजी और शैतान भी राजी. तो हम लोग आप देखे जाएं तो हम लोग वाकई ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं. हम लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फतवा लेके आते हैं, कोई तैयार नहीं है बात सुनने को. मैं अपनी ही फैमिली की मिसाल भी लूंगी कि कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है कि क्या चीज गलत है क्या सही है और हमको इसको सही करना भी चाहिए कि नहीं. लाइक आई माई सेल्फ फील वेरी डिग्रेडेड बाय लाइक यू नो माई फैमिली कि हालांकि मैंने अपने भाई की शादी में उसकी मेहंदी में नहीं शिरकत करी थी. मैं अपनी कोई खूबी नहीं बयान कर रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आसान नहीं था, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपकी अपनी फैमिली होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है ना. अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और भी क्यों करेगा? क्योंकि जो इस्लाम हमें सिखाता है ना, सबसे पहले कि अपने आप को ठीक करो. और मैं जानती हूँ कि मेरी अपनी क्या क्या वीकनेसेस हैं, लाइक यू नो नोबडी इज परफेक्ट एंड आई ट्राई टू वर्क ऑन देम. लेकिन जिस पॉइंट पे आप कोशिश कर सकते हैं ना उसमें कर लेनी चाहिए. तो आई ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन कि इफ वी वांट वी कैन अवॉइड दिस. क्योंकि ना मायो ना मेहंदी हमारी सुन्नत से नहीं है. इसमें जो भी चीजें हो रही है ना, आप मुझे बताएं कि क्या चीज है जो हमारे सहाबा ने करी या हमारे रसूल ने करी. क्योंकि ये पैसे का जिया नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो रहे होंगे. आई नो कि एकदम से कुछ भी बिल्कुल लेकिन एक once you said that आवाज आपको सही आ रही है मेरी आवाज सर्वा? मुझे बिल्कुल आपकी सही आ रही है जी. हम लोग आपने एक हम लोगों की जब कन्वर्सेशन हो रही थी बिफोर द प्रोग्राम, आपने कहा था कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो समझना चाहते हैं, सीख रहे हैं वो. yes, और उन्हें तो कहा कि बच्चों को आइडिया नहीं है कुछ भी कि मेहंदी क्या होती है, मायो क्या होती है.
लेकिन हम लोग जो है वो दिखाते हैं उनको कि भी इस तरीके से वेडिंग ऐसे की जाती है, जी सेलिब्रेट बिल्कुल। होती है, दैट इज अ यस मस्ट पार्ट ऑफ द वेडिंग। यस यस। तो यस मैंने इस बारे में बात करी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मेरे फादर की भी तो डेथ हुई थी, तो आई वाज सिटिंग विद माय nieces एंड nephews एंड वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि ये चीजें सही हैं कि नहीं है। एंड मैं एक्चुअली खुद इतनी हैरान हुई ये बात सुन के कि वो ऑलरेडी जानते थे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ के बच्चे are more exposed to so many cultures and religion that they are already they know कि क्या चीज सही है और क्या गलत है before we even tell them. Yes, हम लोग उनको हम जो करेंगे ना वो आगे जाके वो ही करेंगे, राइट? लेकिन उनको ऑलरेडी आइडिया है, हमें तो पता ही नहीं था। मैं बोलूंगी अगर मैं 20 साल पहले भी जाती हूँ तो हमको तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये चीज गलत भी हो सकती है। नॉट अनटिल हमने दीन सीखा, उसको समझने की कोशिश करी और उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। तो जब हम इस बात के अवेयरनेस हो जाए कोई चीज गलत है तो थोड़ी सी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको अपनी जिंदगियों से निकालें। बेहतर तो कर सकते गो अहेड, आप कुछ कह रही थी? बेहतर कर सकते हैं आप, अगर हम लोग अप्लाई करें, जैसे आपने कहा। um, आपने also in your post you mentioned that we do everything that displeases Allah and bring his anger. Dholki, mehndi, mayo, dancing, music, taking off hijabs and faces full of makeups in front of non-mahram, and wasting of money, wasting of food, wasting of money तो आपने already बात की है। Leaving salah for makeup, ये वाला जो है ये सिर्फ शादियों के लिए नहीं और भी हमारे जो भी तकरीबात होती हैं वो बेसिकली सबके लिए है। जी, उसमें भी यही कुछ होता है कि लेट नाइट जो है वो प्रोग्राम होते हैं, इशा का टाइम है या मगरिब का टाइम है, हमने मेकअप किया हुआ है, वज़ू नहीं है, तो नमाज़ जो है वो निकल जाती है कि लेट। नमाज में बिल्कुल नमाज मिस हो जाती है। तो हम लोग को बस फॉर अ मोमेंट सोचना चाहिए कि व्हाट इफ आवर डेथ कम्स द टाइम वी आर displeasing Allah subhanahu wa ta'ala by not doing what he asked us to do. तो हम लोग इस पॉइंट पे सोचना शुरू कर देना कि जब कि मैंने नमाज मिस कर दी और what if angel of death come the same time. I know of a story, a sister who used to wear hijab and she took it off in a wedding, and after 2 days she passed away. Not that I'm saying कि she was any less than anyone else, but what I'm saying कि हर मोमेंट पे हम लोगों को अपने एक्शंस को देखना है कि कभी भी आ जाएगी ना, हमारी मौत तो कभी भी आ जाएगी। तो इस तरह आए जिस वक्त may Allah be pleased with us, may it come when Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us and we are not doing anything to anger him, inshallah. तो जो आप ये वाली बात कह रही थी कि सिर्फ शादियों में नहीं होता, ये रेगुलर इवेंट्स में भी होता है। आजकल हर किस्म के इवेंट्स में एक्सट्रावेगेंस हो गया है। एंड आप जो हैं डिजर्ट टेबल्स देख लें, आप डेकोरेशन देख लें, एंड मैं नहीं बोलूँगी कि हमारी फैमिली में सब नहीं होता, बिल्कुल होता है क्योंकि ना इंस्टाग्राम कल्चर है ना हमारा, इसने बहुत ज़्यादा फितना फैला दिया है। आप इस बात को कोई माने नहीं माने, बट दिस इज द फैक्ट। इंस्टाग्राम की वजह से मैं बोलूँगी फेसबुक पे भी इतना नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे है। अच्छा। बिकॉज आई मीन बोथ तो बच्चे जो हमारी जनरेशन है ना वो ही कर रही है जो वो देखती है। अब जो इन्फ्लुएंसर्स है ना सारे, वो शादी को इस तरह दिखाते हैं कि हमारी जनरेशन को ये लगता है कि इट्स सपोज टू बी लाइक अ फेयरी टेल। एक प्रिंसेस आ रही है, उसको एक प्रिंस लेने आ रहा है और हर चीज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, इनविटेशन कार्ड ऐसा होना चाहिए। वाकई आप उन लोगों की शादियां देखेंगी ना, वो देखने वाली हैं, लिटरली देखने वाली हैं, लेकिन इन द एंड व्हाट आर वी डूइंग? हमारे यहाँ तो सिर्फ निकाह है और वलीमा है, राइट? नॉट दैट वी शुडंट सेलिब्रेट बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कैन वी शुड कीप एवरीथिंग इन अ हलाल वे। उसके लिए भी मैं आपको ये कह रही थी कि हम लोग इंस्टेड ऑफ म्यूजिक, इंस्टेड ऑफ डांसिंग,
हम बच्चों को ऐसा क्या दिखा सकते हैं कि वो बोलें कि यार ये सच बोरिंग शादी, यार मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों को हल्ला गुल्ला चाहिए, हर एक हम्म, को हल्ला गुल्ला चाहिए। तो इसकी अल्टरनेट क्या होगा? हम लोग ऐसा क्या करेंगे, लाइक सारे मिलके बैठे भी, आप दुल्हन को लड्डू खिलाएं, दुल्हा को लड्डू खिलाएं, लाइक मजे करें, बातचीतें करें, कोई गेम्स खेलना शुरू कर दें सब लोग, लाइक there's so much that we can do to avoid the fitna. एंड उससे क्या होगा कि वी वांट Allah's blessing in our marriages, right? And आजकल देखा जाए तो this is the least that we see in our marriages. इतनी problems चल रही ना, हर हर शादी में आप देखें तो कुछ ना कुछ मसाइल बाद में शुरू हो जाते हैं। कुछ तो बिल्कुल ही कम चलती हैं, कुछ 5 महीने, 1 साल, 3 साल, तो क्योंकि हम लोगों ने जो uh, क्या बोलना चाहिए कि यू सो वट यू, जहन में नहीं आ रहा मेरे इस वक्त, लेकिन उर्दू में उसको क्या एग्जाम्पल करते हैं कि आप जो बो वही काटोगे, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो तो जो बोएंगे हम करेंगे। और वन मोर टाइम, जैसे सरवत ने कहा कि अपनी फैमिली का मेंशन किया है, मैं भी अपने बारे में जो बात कर रही हूँ कि ये टॉपिक लेकर आई हूँ, इट डजंट मीन कि मैं नहीं इसमें इंक्लूड हूँ। मुझे इस तरह से फीलिंग हुई है कि दैट इज रॉन्ग, कि मैंने जो किया या जो सेलिब्रेशन जो अगर आप लोगों को मेरी तरफ से नजर आई है, मेरी फैमिली की, कि दैट इज कि हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। इसीलिए जो है, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी, दैट इज द रीजन आई ब्रॉट सरबत, तो हम लोग इस बारे में बात कर सकें। जी सरबत। सही है। तो हम लोग जो when is time of getting Allah's blessing, when is the time is Allah is actually blessing us, हमारी फाइनली दुआएं कबूल हो रही हैं, राइट? तो उसी वक्त हम अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं। आप देखिए, अल्लाह हमें ब्लेस कर रहे हैं, बट वी स्टार्टेड विद अर्निंग हिज wrath. That's how we start. तो उसका जो फ्रूट होगा, आप बताएं कि कैक्टस नहीं होगा? बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर, हम लोग वही सो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग घटेंगे भी तो वही ना, राइट? तो इंशाल्लाह हम कोशिश जरूर होनी चाहिए। नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो खराबियां होती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी शादियों को सुन्नत की तरफ लेके आए इंशाल्लाह। एंड बिल्कुल, ये तो मौका होता है, अल्लाह ताला हम लोगों को ब्लेस करते हैं कि इस तरह से शादी आती है फैमिली में। और ऑफ कोर्स के इस्लाम में जो है इस तरह की सेलिब्रेशन, खुशी का इज़हार करना, लेकिन कैसे किया जाए, कौन सी कितनी लिमिट्स में रह के हम लोग उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी बारे में जो है हम, इट डज़न्ट मीन प्रोग्राम करने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग जो है बिल्कुल जो है सेलिब्रेशन नहीं हो रही है या खुशी का इज़हार नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करना, खुशी का इज़हार करना वो पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वाक़ई हम लोग किस तरह, हाउ कैन वी अर्न Allah's blessing in our marriages? यस, वी शुड स्पेंड द लीस्ट। वो जो पैसे आप इतना खर्च कर रहे हो सिर्फ वेडिंग में, उसको कम करके यू कैन सेव दैट मनी एंड यू कैन डू समथिंग फॉर योर डॉटर और फॉर योर सन। उनको आप वो पैसे उनके फ्यूचर के लिए दे दें, आप उनको घर लेके दे दें, whatever it is. Again, I'm not talking about jahaz or anything like that. But you can use that money in a wise way. Because देखिए ना, लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन आपके लिए खुश हो रहा होता है? लाइक जाहिर तो सब, लाइक मैंने तो हमेशा यही देखा है कि पीछे लोग घर जाके बातें ही कर रहे होते हैं, यार खाना मजे का नहीं था, यार यार ये चीज अच्छी नहीं थी। अब देखिए, ये बात सच है कि नहीं है? कि आपने जो है पूरी परफेक्ट आपने है कि खाना जो है ज़बरदस्त, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मीठा नहीं अच्छा था या हाँ, बिरयानी अच्छी नहीं थी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बात करने के लिए, या मेकअप नहीं अच्छा है, दुल्हन का मेकअप बिल्कुल। दुल्हन का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, या ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था, यार लाइक यार कोई भी चीज परफेक्ट तो कभी भी नहीं होगी, राइट? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ लोगों को खुश करने के लिए, आर वी ट्राइंग टू प्लीज पीपल एंड इन डिस्पाइट वी आर डिस्प्लीजिंग अल्लाह? दैट्स माय क्वेश्चन। हम लोग लोगों को खुश करने में इतने आगे चले जाते हैं कि हम लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, उसमें हम अल्लाह ताला को नाराज कर जाते हैं। तो हम कोशिश हमारी होनी चाहिए कि किस तरह हम लोग अल्लाह को लेके चलें, हम लोग हम किस तरह सेलिब्रेट करें कि विच
cannot cause any sort of fitna. As I said, enjoy करना बिल्कुल भी मना नहीं है. Have fun with your family. You can play any kind of games, like जो भी हलाल games हैं हम लोग वो खेल सकते हैं. खाना बनाने की, like सब हर कोई अपने अपने घर से खाना लेकर आ जाए, सब लोग बैठ के खाएं, enjoy करें. लाइक बहुत तरीके से हम लोग enjoy कर सकते हैं. आप लोग पुरानी पिक्चर्स लगा दें बच्ची की, लाइक आजकल ये भी काफी चल रहा है ना, which is not bad. I think ये तो अच्छा है कि आप लगा दो बच्चे की बचपन की पिक्चर्स लगी हुई हैं, and then how she grew up. It shows every stage. It's beautiful. Nothing's wrong with that. So you can do all of this, brings you happiness. Second, एक और बात मेरे जो जहन में ये क्या आई थी अभी, जहन से निकल गई, लेकिन stay up or sleep right before फजर, कि उसमें जो है फजर की नमाज रह जाती है. बिल्कुल वो भी एक इम्पोर्टेंट हम लोग सोचते नहीं है. और बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि सारी रात जो है हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है, एंजॉय किया है, शादी की तकरीब है, निकाह होगा, सब कुछ है, और हम लोग कोई बात नहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें नमाज रह गई है. लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, इसमें जो हम जो प्रोग्राम करें कि ब्लेसिंग्स कैसे लें, कैसे इससे हमें जो है वो फितने से बचें, क्योंकि हमें तो जो है वो सिखाना है. बच्चे जैसे आपने कहा स्मार्ट हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें जो है वो बच्चे वही करेंगे जो हम कर रहे हैं आज. बिल्कुल सही बात है. वी आर सेटिंग एग्जाम्पल फॉर दैम. अगर आप उनको बोलेंगे कि ये चीज, अगर हम थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ना, विच आई ऑल्सो बिलीव कि हमारी फैमिली में भी ये सब इस तरह स्टार्ट हुआ है कि रिसेंटली किसी की शादी हुई और उसमें लेकिन डांस शादी सब कुछ था. पहले हमारे खानदान में इस चीज को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन वो स्लोली it became norm. And since that's what kids are seeing, उन्होंने देखा कि यार एक शादी में और दूसरी शादी में भी हो गया, अब तीसरी शादी में भी हो गया, चौथी शादी में भी, तो वो चीज इतनी नॉर्मलाइज्ड हो गई कि फिर गुनाह नहीं लगता हमको लगता है यार थोड़ा सा तो चलता है ना यार, एंजॉय कर लेते हैं, क्या है, कभी शादी तो कभी कभार होती हैं. तो शादियां बेशक कभी कभार होती हैं, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो गए तो फिर तो कुछ नहीं है ना. That's true. So that is the point that we are talking about. For little fun, we lose our iman, and deen we do opposite of the teachings of Sunnah and Quran, like you said. Bilkul, we expose our kids to haram ourselves, and we cry when they go in a wrong path. आपको ये बात जो है आपने बहुत अच्छी लिखी है, सरबत बहुत अच्छी मेंशन की है कि बाद देखें ना कितने इश्यूज हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए. हम लोगों की मस्जिद में जो है वो जैसे आपने अल्लाह ताला आपके वालिद की मगफरत फरमाए, हमारी आमीन आपके साथ हैं. जज़ाकल्लाह खैर. जो है वो डेथ्स हुई हैं, और यूथ, हमारे जो इमाम है यूथ की बात कर रहे थे कि हाई डोजेस से इतनी सारी डेथ्स हुई हैं इस कोविड में. हमें नहीं मालूम हमारे बच्चे जो हैं वो किस रास्ते पे चल रहे हैं. तो ये एक बात तो जो आपने हेडिंग, वेयर आर वी हेडिंग, और अब बच्चे जो हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं. इसको हम कर सकते हैं. यू नेवर नो, डेथ तो आपके 20 साल के बच्चे की भी आ सकती है, 19 की भी है, 22 भी है. तो वो तो जी, एंड वी हैव सीन दैट. वाकई हम लोगों ने कोविड में, या जो आपने अभी मेंशन किया, वी सॉ दैट so many death of young kids, and it was because of the high dose. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of our kids. हम लोग, मैं सबसे पहले बात सिर्फ पेरेंट्स को बोलूंगी, बच्चों का उसमें कोई भी कसूर नहीं है, राइट? हम लोग खुद को अगर ठीक करेंगे ना तो हमारे बच्चे खुद ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह. Because everything starts from yourself. So if we work on our own selves, खुद की इस्लाह के लिए हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे, तो आपको हर जगह यही बोला जाता है, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं. So kids learn by watching, not by teaching, and which is also very true. So make sure in our day-to-day life we are somehow telling our kids what's wrong and what's right. Again, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल दूंगी. शुरू से मैंने अपने बच्चों के दिल में यही बात डाल दी है कि
म्यूजिक हराम है, हम लोग नहीं सुन सकते, वी कैन लिसन टू इट, डांसिंग इज नॉट गुड। तो जब फिर हमारी फैमिली में वो ये देखते हैं ना, तो मेरे बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं that they start crying। मैं उस शादी में बैठ नहीं सकती जिसमें म्यूजिक होता है, और मेरे बच्चे रोते हैं, वो बाहर खड़े हो जाते हैं, वो अपने कानों में हाथ डाल देते हैं। और ए, अब इसमें मैं अपनी कोई वो नहीं बोल रही, या फिर बस बेशक अल्लाह की तरफ से है। what I am trying to say, it's because that's what they saw me doing, and that's what they बेसिकली ऑब्जर्व्ड कि जो चीज गलत है वो है और हमको बचना है। तो वो तो खुद ही मुझे बोलते हैं, मम्मा आप क्यों जा रही हैं? तो हम लोग मजबूर है ना, हम लोग क्या करें, कितनी सारी जगह पे हम मजबूर हो जाते हैं। तो कि हमको बेटा जाना भी जरूरी है, क्योंकि इनविटेशन है, एंड दैट्स आल्सो अ राइट अपॉन अनदर मुस्लिम, वी हैव टू गो, वी हैव टू अटेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसलिए मिस नहीं कर सकते कि वहां पे ना हम उनको ये बोल सकते हैं कि भाई आप गाने नहीं चलाएं, या फिर तो वो इतना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने अपने बच्चों को क्योंकि दूसरी तरफ डाल दिया ना, तो उनको मैं कोशिश, जाहिर सी बात है फिर डिफरेंट अगर उनको ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं तो उनको उनमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वी हैव लाइक ऐसी भी हम लोगों की गैदरिंग्स हो वेयर पीपल आर ऑल अबाउट दीन, देयर इस तरह के लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, ताकि हम लोग खुद भी सीखें, हमारे बच्चे भी सीखें। और इसीलिए मैंने आया प्रोग्राम में। बेटे हम भी और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी जो है वो ये सब कुछ सुने, और मेरे लिए बहुत बड़ा ये रिमाइंडर था जो मैंने आपका पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और later on whenever you bring any topic I'm gonna invite you again सरवत। आखिरी और मैसेज अपने हमारे नाजरीन के लिए आप देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? इंशाल्लाह मैं बस बात यही करूंगी कि never displease Allah in order to please people. People will never be pleased. Wallah, wallah, no matter what measures you take to please people, there will always be something that would displease them. But a little, like a tiny bit of a step that you took towards Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, He's ready to grab you. I am quoting that from a hadith. Allah subhanahu wa ta'ala ने नहीं बोला तो मेरी तरफ एक तरफ बढ़ोगे तो चार्ट। सो सुभान अल्लाह, थोड़ी सी कोशिश करें, बस अपने दिल पे कोई बात नहीं लें। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही, प्लीज अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुद से भी प्रॉमिस करें कि थोड़ी सी इस्लाह करेंगे, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट शादी में कोशिश करेंगे कि कम खर्चा करें और इंशाल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग्स हासिल कर लें। आमीन। शादी करेंगे जी, कम खर्च कहते हैं ना, इसको एक मुहावरा है उर्दू की। अच्छा तो इसी तरह हम लोग जो है इससे हमें भी फायदा होगा। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जैसे सरवत ने कहा है कि कोई भी बात बुरी लगी हो तो सरवत आपने तो हमारी आंखें खोली हैं, तो जजाकल्ला में अल्लाह ताला ब्लेस यू एंड इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी मैं भी अपने नाज़रीन को यही बात करूंगी कि मेरा मकसद यही था टॉपिक का कि भाई मुझे इस्लाह की जरूरत है, और यही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, आई ब्रिंग सो मच लाइक डिफरेंट स्टफ, लेकिन मुझे ये बात जरा अपने लिए बुरी लगी थी इसलिए जो है वो इस टॉपिक को मैंने आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है नौशीन, कि इंसान अपनी गलती देख ले और उसको सुधारने की कोशिश करे। ये it's a blessing. That means Allah subhanahu wa ta'ala is with you, inshallah. Inshallah. I mean, just like you said that celebrations are not haram, but do it in a way which doesn't compromise your iman. हमें जो है जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी देखनी चाहिए। हम कौन सा ऐसा आप देखें कि हम कौन सी चीजें जो है गिव अप करते हैं कि नहीं ये काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो हम ये जो है नहीं करेंगे। इस तरह का माइंड सेट करें और अल्लाह ताला के करीब होने के लिए हमें ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस जो है वो हमारी जिंदगी में जो है हमें अप्लाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सरवत। जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह खैरन। आपको भी बहुत शुक्रिया नौशीन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वल्लाह आई फेल्ट लाइक ये अल्लाह की तरफ से था नौशीन, क्योंकि रिसेंटली I just felt very disheartened. I had a similar conversation
and with someone, and I just felt so disheartened. I felt like, you know, कि या अल्लाह मेरा दावत देने का अंदाज गलत है कि मैं अपना पॉइंट कभी अक्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब आपका मुझको कॉल आई, आपका मैसेज आया, तो मुझे लगा कि यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जो ये दावत की थोड़ी सी भी कोशिश है ना, अल्लाह उसको कबूल फरमा लें। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बारे में बात कर सकूं और डिफरेंट नाजरीन से बात कर सकूं, जहाँ पे शायद वो लोग इस बात को ले लें। तो थोड़ी सी कोशिश है। May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us, from you and I, Ameen. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone who is listening. Jazakallah khairan. And I pray that and every action you take after this, may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means for you to enter Jannah and earn His pleasure. Ameen. आमीन आमीन। for was and इसके साथ ही हमें दीजिए और सरवत को इजाजत दीजिए और बताइए कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या लेकर आए। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है मिल के अपनी इस्लाह कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए प्रोग्राम है, हमारी इस्लाह के लिए जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस सरवत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Walaikum assalam. Walaikum assalam. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।